We start with the name of Almighty God, the most beneficent, the most merciful. Dear student friend follower, today you people will learn about what is social linguistic. In social linguistic, there are a lot of terms. Like you will learn about what is diglossia, what is code switching, what is code mixing. You'll learn about what is register and dialect. You will learn about standard language. Standard accent, you learn what is accent, what is dialect, and what is diglossia, what is vernacular language, what is pidgin, and what is crawl. So these are new terms. Perhaps these are new terms for you, but these are existed in language. When you speak language, you are using all these. Regardless of all these things, you still use in your conversation or discourse. You use all these things, but you do not know, because you do not know all these terminology. Today I will be teaching you about dialects, about standard accents, teaching you about register, what is register, what is dialect, what is accent, what is formal language, what is non-formal register, and what is diglossia or vernacular pidgins, and especially crawl. So these are very informative things for you. Today you people will be learning about all this. So prior to start my lecture, I want that you should write some points. What is sociolinguistic? If any student knows about sociolinguistic, kindly explain. I'll appreciate student. What is sociolinguistic according to you? What is social? So the relationship between language and society. Okay. Anyone else? Our behavior in society and the relation of language with our society. Okay, whenever you explain this question, and perhaps I 100% sure that they'll be asking about code mixing, code switching. They'll be asking you about register or dialect. They'll be asking you about Creole and pidgin. They'll be asking you about vernacular or language, or what is formal or informal language. They might be asking you about like these diglossia. So they'll be asking. So whenever they ask such kind of questions, especially social linguistic, if they say that explain social linguistic, make a spider diagram like that, in which you will just write social linguistic is related to language varieties. Social linguistic किससे रिलेटेड होता है? इसमें हम लैंग्वेज वैरायटी को स्टडी करते हैं. इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? लैंग्वेज वैरायटीज. व्हाट आर द वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज? हम लैंग्वेज वैरायटीज़ को देखते हैं, हम डायलेक्ट्स को देखते हैं कि एक लैंग्वेज के अंदर क्या कौन कौन से डायलेक्ट्स हैं, और एक डायलेक्ट होता क्या है. आपसे अगर वो पूछ लेता है कि व्हाट इज़ डायलेक्ट, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डायलेक्ट एंड रजिस्टर, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना. सिंपली जो मैं अभी आपको बात बताऊंगा, आपने डायलेक्ट ये बताता है कि आप किस पर्टिकुलर रीजन या एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर पंजाब से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा एक ख़ास अंदाज है बोलने का, तो ये मेरा एक डायलेक्ट है. ठीक है. अगर कोई सिंधी जो है वो आपसे बोलेगा तो आप फ़ौरन पहचान जाएंगे ये सिंधी है. तो मीन डायलेक्ट स्पेशली टेल्स अबाउट अ पर्सन, वेयर दिस पर्सन कम फ्रॉम, वेयर दिस पर्सन इज कमिंग. सो आपकी उस एरिया, जोग्राफी, आपकी पोजीशन, स्टेटस, सब कुछ आपका डायलेक्ट बता देता है. एक आपसे सराकी जो बोल रहा है, वो उसका एक डायलेक्ट है, वो फ़ौरन उसका पता चल जाएगा यार ये कोई साउथर्न या इस तरह के पंजाब के एरिया से ताल्लुक़ रखता है, और वहाँ के लोग जो हैं वो सराकी बोलते हैं. यानी कोई इधर से मल्तान साइड से होगा तो वो बोल रहा होगा, तो फॉर यू इंस्टेंटली यू पीपल विल कम टू नो दिस पर्सन बिलोंग टू मुल्तान एरिया एंड दे आर स्पीकिंग लाइक दैट पंजाबी. अगर कोई लाहौर साइड से होगा तो वो हमारी तरह की पंजाबी बोलेगा, तो फ़ौरन आप पहचान जाएंगे ये लाहौर या उसके सराउंडिंग एरिया का है. कोई सिंध से होगा तो सिंधियों को जैसे बोलने का डायलेक्ट है तो आप पहचान जाएंगे. कोई पेशावर से होगा तो पेशावर के डायलेक्ट से आप
तो डायलेक्ट आपको सिंपली ये बताता है, ये वैरायटी ऑफ लैंग्वेज लिख लें, डायलेक्ट इज अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। डायलेक्ट एक ऐसी वैरायटी है लैंग्वेज की जो क्या बताता है कि वेयर दिस पर्सन कम फ्रॉम। डायलेक्ट वैरायटी ऑफ लैंग्वेज सिग्निफाइज, क्या सिग्निफाई करता है, वेयर पर्सन हैज कम फ्रॉम। बस इतनी सी इसकी मतलब आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद बता दें, 4-5 एग्जाम्पल दे दें। मिसाल के तौर पर एक बंदा मुल्तान का है तो उसका पता चल जाता है वो मुल्तान का, एक पंजाब का है फलां एरिया का पता चल जाता है, एक कोई सिंध से आया तो सिंध का पता, तो इट इज़ टेलिंग यू वेयर द पर्सन इज कमिंग फ्रॉम। पूरा बैकग्राउंड उसके बोलने के अंदाज से पता चल जाता है। तो हम जब सोशल लिंग्विस्टिक को स्टडी करते हैं, वी सी हाउ सोसाइटी इज इम्पैक्टिंग ऑन लैंग्वेज। सोसाइटी का इम्पैक्ट क्या है लैंग्वेज के ऊपर, हम सोशल लिंग्विस्टिक के अंदर स्टडी करते हैं। बात याद रख लें, हाउ सोसाइटी इज इम्पैक्टिंग, इज सोसाइटी इज इम्पैक्टिंग लैंग्वेज, वो हम सारा देखते हैं कि हाउ सोसाइटी इज इम्पैक्टिंग लैंग्वेज। तो ये हम किसके अंदर देखते हैं, जब हम सोशल लिंग्विस्टिक को स्टडी करते हैं, या वाइस वर्सा, उसके उल्ट लैंग्वेज ने कैसे सोसाइटी के ऊपर अफेक्ट किया और सोसाइटी ने कैसे लैंग्वेज में के ऊपर अफेक्ट किया है, उसके अंदर हम देखेंगे। फिर डायलेक्ट, उसमें हम देखेंगे क्रोल क्या है, पिजन क्या है, वैराइटीज ऑफ लैंग्वेज क्या है, ठीक है, डिग्लोसिया क्या है, वर्नैकुलर लैंग्वेज क्या होती है, ऑल दीज थिंग विल स्टडी। तो फिर हम रजिस्टर को भी स्टडी करेंगे इसके अंदर। अभी तो मैंने आपको जस्ट ये बताया कि व्हाट इज डायलेक्ट, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज रजिस्टर। अगर आपके पास कोई बुक है तो आप मज़ीद इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको बड़ा खुल के, अगर ना भी स्टडी करें तो मेरे आइडियाज़ ही लिख देंगे, तब भी आपका क्वेश्चन ठीक होगा। डायलेक्ट मैंने बताया कि इट टेल्स वेयर पर्सन हैज़ कम फ्रॉम, उसमें आप मिसालें देंगे, पंजाब की मिसाल दें, सिंध की मिसाल दें, ठीक है, और अपने KPK की मिसाल दें, उनके लोगों की, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। तो इट सिंपली टेल यू वेयर पर्सन इज़ कमिंग फ्रॉम, उसके बोलने का अंदाज, उसके सिलेक्शन ऑफ वर्ड, उसके टोन, इंटोनेशन, सब कुछ आपको बता देगा। डायलेक्ट स्पेशली टेल्स वेयर पर्सन इज कमिंग फ्रॉम, ठीक है। अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज सिग्निफाइज वेयर पर्सन हैज कम फ्रॉम। लिख लें, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज सिग्निफाइज वेयर पर्सन हैज कम फ्रॉम। नीचे आप मिसालें लिख दें, आपका ये क्वेश्चन आंसर जो है ठीक होगा। नीचे आप रजिस्टर लिखें, व्हाट इज रजिस्टर। बच्चों को अक्सर पता नहीं चलता व्हाट इज रजिस्टर। तो रजिस्टर सिंपली होता है कि फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज का जो खास फील्ड के लिए खास फंक्शन होता है उसको हम रजिस्टर कहते हैं। अब मैं 2-3 यहाँ पे लिख लें, इसका लिख लें पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, a variety of language for a particular function। इसकी डेफिनेशन लिखें, variety of language, variety of language यानी a variety of, ऐसी variety of language for particular function। पहला को मैंने पहले का क्या बताया कि वो क्या सिग्निफाई करता है कि बंदा कहाँ से आया है, किस एरिया का, किस रीजन का है, किस तरह का अंदाज से बोलता है, कौन से डायलेक्ट से बोलता है, आपको पता चल जाएगा। उसका कल्चर, उसकी ज़ात, उसका रिकग्निशन, उसकी सोसाइटी, कम्युनिटी, सब कुछ पता चल कि भाई इस एथनिक ग्रुप से, इस खास स्पेसिफिक सोसाइटी से, इस खास ग्रुप से ये बंदा ताल्लुक़ करता है। बट रजिस्टर इज अनदर थिंग। रजिस्टर टेल्स यू, रजिस्टर सिंपली टेल्स यू फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, कि ये कौन सा फंक्शन कर रहा है। मिसाल के तौर पर एक लॉयर की जो लैंग्वेज है वो एक डॉक्टर से डिफरेंट है। अब लॉयर की जो लैंग्वेज है, जिसको लॉ की लैंग्वेज कहते हैं, वो उसका रजिस्टर होता है, ठीक है। एक डॉक्टर की जो लैंग्वेज है, एक फार्मर की जो लैंग्वेज है, ये सारे रजिस्टर हैं उसके। एक टीचर की जो लैंग्वेज है, अब एक टीचर जो है वो अक्सर मैंने देखा टीचर बात करते हैं, वो कहते हैं यार मैंने पूरी लैंग्वेज पढ़ी है, लेकिन जब मैं मेडिकल की कोई मेडिसिन की दवा
किसी मेडिसिन की का नाम लिखने लगता हूँ या उसे पढ़ता हूँ, उसे पढ़ा नहीं जाता, उसकी ख़ास लैंग्वेज है मेडिकल की। तो मेडिकल एक रजिस्टर होता है, मेडिकल का अपना रजिस्टर होता है जो मेडिकल का है। तो लैंग्वेज का खास फंक्शन, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, कि ऐसी वैरायटी लैंग्वेज की जो पर्टिकुलर फंक्शन, खास फंक्शन सर अंजाम देता है। यानी वो एक लॉयर की लहदा से, एक डॉक्टर की लहदा से, एक टीचर की लहदा से, एक ट्रेनर की लहदा से, एक साइकोलॉजिस्ट की लहदा से, एक फिलासफर की लहदा से, वो जितने भी उसके ख़ास फंक्शन हैं उसको हम कहेंगे रजिस्टर। और ये फॉर्मल भी होता है और नॉन फॉर्मल भी होता है। अब फॉर्मल रजिस्टर, you sitting in an office, you are dealing as a lawyer, your language will be different. But whenever you are a friend and you are talking to your friend, it will be totally changed. तो आपका रजिस्टर जो है वो टोटली इनफॉर्मल हो जाएगा, वो और ही अंदाज से आप बोलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी जो वैरायटीज़ हैं ये हम सोशल लिंग्विस्टिक के अंदर स्टडी करते हैं कि आपका किसी जगह पे बैठना, डील करना, आप हाउ you deal with language when you go to the funeral ceremony, when you go to the wedding, how do you behave, when you go to the friend, how do you behave, when you go to the lawyer, how do you behave, when you go to the teacher, how you are going to behave, when you going to a class, how you are going to behave, formal, informal, diglossia, vernacular language और उसके क्रोल, पिजन, हर चीज़ हम इसके अंदर स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं सोशल लिंग्विस्टिक। अच्छा जी, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल जो रजिस्टर है, हम देखते हैं फॉर्मल क्या है और इनफॉर्मल रजिस्टर क्या है। ठीक है, मैंने रजिस्टर लिख दिया, उसको भी मैंने डिफाइन कर दिया। आगे हम इसके अंदर देखते हैं पिजन, PIDGEN। सो पिजन, ये डी साइलेंट है। अब पिजन में हम देखते हैं पिजन बेसिकली कैसे फॉर्म होता है। पिजन के साथ एक और, इसके साथ ही जुड़ी एक और टर्म है, उसे कहते हैं क्रोल, CREOLE, क्रोल। सो व्हाट इज़ क्रोल एंड व्हाट इज़ पिजन, ये भी हम सोशल लिंग्विस्टिक के अंदर ही स्टडी करते हैं। और एक पिजन जो है अल्टीमेटली क्रोल को फॉर्म करता है। ओके, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स जो हैं वो सऊदी अरेबिया में हैं, वो अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं लैंग्वेज की, यार मुझे लैंग्वेज सिखाओ, आई वॉन्ट टू लर्न IELTS, TOEFL और समथिंग लाइक दीज कोर्सेज, स्पोकन लैंग्वेज, यू प्लीज़ teach us because you are trainer of English language, why don't you teach us English? I teach them English language, but you know what kind of language they know, they usually speak to me. They say that whenever we are going to deal with the English people as well as Arabic people, how we are going to deal them. यहाँ के वर्कर जब सऊदी अरेबिया में जाते हैं, ये बड़ी सिंपल मिसाल है, आप समझ जाएंगे इससे, वो पिजन को फॉर्म करते हैं। कैसे? क्योंकि उनको बिजनेस पर्पस के लिए कंपनी में काम करना है और उन्होंने किन के साथ डील करना है, उन्होंने अब वहाँ पे अरबिक लोगों के साथ डील करना है। ये बात गौर से सुनिएगा, ये बड़ी मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दी। पंजाबी भी हैं उनके, इंडियन भी हैं, उर्दू भी हैं, ठीक है, हिंदी भी हैं, फ़िलिपीनी भी हैं, फ़िलिपाइन से भी लोग आए हुए हैं, यानी, और उसके बाद इंग्लिश भी हैं। वो इंग्लिश और अरबिक पीपल जो हैं वो मिल के बिज़नेस करते हैं, और ये सारे बेचारे, और उसके बाद बंगाल से भी होते हैं, ठीक है, बंगाली भी हैं। अब ये सारी लैंग्वेज जो हैं, इसको, इस पर्पस को हल करने के लिए, यानी इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए उन्होंने पिजन जो है वो डिस्कवर की। बात समझ आई? अब वो ये कहेंगे कि यल्ला हबीबी, आई नीड दिस, और मुझे इसकी ज़रूरत है, और मुझे, मेरे लिए ये करें। अब वो मिक्सचर लैंग्वेज तैयार करेंगे। लैंग्वेज मिक्सचर होगी, और कुछ पंजाबी बोलेंगे, कुछ उर्दू बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, अरबिक बोलेंगे, और वो मिली जुली एक लैंग्वेज होगी, उसे कहते हैं पिजन। एंड दैट इज़ फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। किस पर्पस के लिए होती है? कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। वो कहते हैं कि हम इस तरह उसको कन्वे करते हैं। हमें लैंग्वेज नहीं आती, इंग्लिश टोटली नहीं आती, हम जब किसी अंग्रेज़ से बात करते हैं तो आधी हम उर्दू, आधी इंग्लिश, पंजाबी और साथ अरबिक बोलकर उस अंग्रेज़ को भी समझा लेते हैं। तो वो जो मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज होती है, काफ़ी लैंग्वेज का मिक्सचर होता है, उसको पिजन कहते हैं। अब बाज़ औक़ात अफ्रीकन एरिया के कुछ इलाके हैं
अफ्रीकन, उसमें उन लोगों ने उस पिजन को क्रोल बना लिया। जब एक लैंग्वेज मसलसल बोली जाती है और वही लैंग्वेज कन्वे हो जाती है बच्चों तक, और बच्चे उनको अपनी मादरी लैंग्वेज ही बना लेते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज ही बना लेते हैं, तो वो क्रोल बन जाता है। वहाँ क्या बन जाता है? क्रोल। That will ultimately or later it is known as pidgin. The same pidgin is known as Creole when it is adopted as a mother tongue or first language of any country. किसी कंट्री में कुछ लोग इतना बोलते रहते हैं कि वो उनके बच्चे भी वही बोलने लग जाते हैं, तो वो उसका क्रोल बन जाता है, क्रोल। यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बताइए, जो मैंने टर्म समझाई। सर पिजन की प्रॉपर डेफिनेशन लिखवा देंगे? हाँ बिल्कुल लिखवाऊँगा, हमारे पास असाइनमेंट है, उससे आपको मिल जाएगी। तो पिजन मीन व्हेन पिजन इज़ यू नो mixture of various language for communication purpose. Pigeon is a mixture of various language for communication purpose. बस एक लाइन की लिख लें। When the same pigeon language that is used as a mother tongue of certain people, a certain community, it will be known as Creole. तो वो उसका क्रोल बन जाएगा, क्रोल। बाकी मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ तक मुझे बताएं कि ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। मैंने डायलैक्ट की बात की, मैंने रजिस्टर की बात की, मैंने फार्मल और नॉन फार्मल इनफॉर्मल लैंग्वेज की बात की, मैंने पिजन और क्रोल की बात की, और ये एक होता है कोड मिक्सिंग, क्योंकि उसने आपको शॉर्ट क्वेश्चन देने हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाए। एक होता है कोड मिक्सिंग, ये मैंने आपको दी हुई असाइनमेंट भी, उसको भी आपने देखना है। एक होता है कोड स्विचिंग, ये भी हम इसके अंदर ही स्टडी करते हैं। अब व्हाट इज कोड मिक्सिंग एंड व्हाट इज कोड स्विचिंग? अब ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, सीखने वाली हैं। अच्छा जी, कोड मिक्सिंग जो होता है कि मिसाल के तौर पर आई एम टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंस्टेंटली आई यूज वन और टू वर्ड्स ऑफ उर्दू और अनदर लैंग्वेज। मैं एक लैंग्वेज बोलता हूँ और उस लैंग्वेज के साथ दूसरी लैंग्वेज बोलता हूँ, फिर इंग्लिश बोल रहा हूँ, यानी इंग्लिश के अंदर ही 2-3 लफ्ज़ बोल लेता हूँ, तो ये हमारा होता है कोड मिक्सिंग। लेकिन जब मैं टोटली एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चला जाता हूँ, आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश, और उसके बाद मैं टोटली उर्दू बोलने लग जाता हूँ, तो ये मेरा होगा कोड स्विचिंग। कोड का मतलब होता है लैंग्वेज, मिक्सिंग का मतलब होता है 2 लैंग्वेज को मिलाना, स्विचिंग का होता है एक से दूसरी पर स्विच कर जाना। होप यू गॉट द पॉइंट। अब ये जो चीज़ें हैं, मेन चीज़ें मैंने आपको बता ली हैं। अब मैं आपको वन बाय वन इधर से पढ़ाता जाऊंगा और इंशाल्लाह आपको समझ आती जाएगी। जस्ट फॉलो मी। हाँ जी, यहाँ तक जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, यहाँ पे किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो मुझे अभी बता दे, क्योंकि आगे मैंने यही चीज़ें डिस्कस करनी है, आपको वो समझनी फिर आसान हो जाएंगी। यहाँ पे जितनी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, इफ़ यू पीपल हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिग्लोसिया। अब डिग्लोसिया का भी मतलब सुन लीजिए। डिग्लोसिया का मतलब होता है कि 2 लैंग्वेज। हर लैंग्वेज जो होती है उसकी एक स्टैंडर्ड वैरायटी होती है, एक उसकी लोअर वैरायटी होती है। तो डिग्लोसिया कहाँ पे फॉर्म होता है, कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे 2 लैंग्वेज सेम वैरायटी लेकिन डिफरेंट प्रेफरेंस के साथ बोली जाती हैं, उसको डिग्लोसिया कहते हैं। उर्दू का भी डिग्लोसिया है। कुछ उर्दू जो है वो बड़ी स्टैंडर्ड किस्म की उर्दू होगी, कुछ जो है आधी पंजाबी मिली जुली होगी, तो वो उसका डिग्लोसिया होगा। पंजाबी का भी डिग्लोसिया, एक तो पंजाबी बड़ी रिफाइंड पंजाबी है, जैसे सिख बोलते हैं, जैसे हमारे दूसरे लोग पंजाबी हमारे बोलते हैं लाहौर के या इस तरह, तो एक पंजाबी वो दूसरी भी है, उसकी लोअर वैरायटी भी है, तो ये डिग्लोसिया वहाँ पे होता है। अब ये सारी टर्म्स टेक्निकल टर्म्स हैं। लिंग्विस्टिक क्या होता है? The scientific study of the human language, meaning, form, context. Meaning, form, context. इसको क्या कहते हैं? Linguistic. Sociolinguistic. What is sociolinguistic? Sociolinguistic में हम क्या कहते हैं कि सोसाइटी का इम्पैक्ट किसी लैंग्वेज के ऊपर क्या है, उसको हम क्या कहते हैं? Sociolinguistic. In sociolinguistic we study how society is affecting language. किस तरह के अफेक्ट जो है सोसाइटी लैंग्वेज के ऊपर कर रही है। You people can't deny culture, society from language.
You can't separate language from society and its culture. Even you are not able to learn language unless you learn society and culture. It is necessary because certain words they are having contextual and situational and socio-political meaning. You have to learn all that. I say you, I'm going to the pub and enjoy with a friend. I'm just going to hang out with a friend in a pub. अब आपको पब का मतलब नहीं पता तो आप यू विल बी टोटली बैफर्ड एंड कंफ्यूज बिकॉज दिस वर्ड इज रिलेटेड टू द इंग्लिश कल्चर और उसकी सोसाइटी लैंग्वेज के साथ ज़रूर रिलेटेड होती है. आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते. बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो कल्चर देता है, बहुत सारी सोसाइटी देती है, और जैसे मैंने कहा कि आर्बिट्ररी होती है. लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी इन इट्स यूज़. So talk about the word, they have a different meaning in different places. Even बहुत सारे जो मानी है वो डिफरेंट मानी रखती हैं, चीज़ें वो मुख्तलिफ मानी रखती हैं. अब यहाँ पे एक सोसाइटी में मैं आपको फिर वही बात बताऊँगा. एडवर्ड सईद ने जैसे कहा था, एडवर्ड सईद सेड कि यहाँ से कोई प्रोफेसर ले जाएं मिडल ईस्ट से और उसको आप इंग्लिश लोगों के पास ले जाएं और उसे कहें कि ऑब्ज़र्व करें कि क्या कर रहे हैं लोग वहाँ पे. एक बाल पार्टी के अंदर जो फीमेल और मेल जो हैं वो एक दूसरे के साथ बगलगीर हो रहे हैं, एम्ब्रेस कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, और बिल्कुल मिनी स्कर्ट उसने पहनी है औरत ने किसी ने, तो वो उसे कहेगा अनकल्चर्ड है लेडी ये. अब यहाँ से वहाँ से प्रोफेसर एक ले आए और उसे मिडल ईस्ट का ज़रा टूर करवाएं, वो कहेगा कि यहाँ पे जिसने नकाब पहना हुआ है और टोटली वो वेयर्ड है औरत, तो वो उसको कहेगा कि अनकल्चर्ड है, इसे पता ही नहीं है. तो मीनिंग्स भी कल्चर के साथ चेंज हो जाते हैं. एडवर्ड सईद ने ये बताया कि जो कल्चर जिसको आप रस्टिक और एब्सोल्यूट कल्चर कहते हैं, वो वहाँ पे तो कल्चर एक अजीम कल्चर है. तो मीनिंग कौन देता है? सोसाइटी. और ये होती है आर्बिट्ररी. सोशियो लिंग्विस्टिक, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिलेशन टू सोसाइटी. हम सोसाइटी लैंग्वेज की स्टडी करते हैं और उसमें रिलेशन किसके साथ देखते हैं? सोसाइटी के साथ. सोशो का मतलब क्या? सोसाइटी. हाउ सोसाइटी इज गोइंग टू अफेक्ट लैंग्वेज वी स्टडी. ये हडसन ने डेफिनेशन दी, इसको भी नोट कर लें. सोशो लिंग्विस्टिक एंड सोशियोलॉजी ऑफ. अब सोशियोलॉजी के अंदर क्या हम स्टडी करते हैं? सोशियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं हाउ लैंग्वेज अफेक्ट द सोसाइटी, कि लैंग्वेज सोसाइटी को कैसे अफेक्ट करती है, क्या क्या चेंजेस आती हैं सोसाइटी में, लैंग्वेज कैसे उसको डोमिनेट करती है, कैसे चेंज कर देती है, कैसे उनकी थॉट चेंज कर देती है. तो वो सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी में. बट हियर इज़ अ सोशो लिंग्विस्टिक इट्स मेन फोकस सोसाइटी ऑन लैंग्वेज, कि सोसाइटी लैंग्वेज के ऊपर क्या अफेक्ट कर रही है, इसमें हम ये स्टडी करते हैं. तो एक में क्या करते हैं हम? सोसाइटी, और इसका इम्पैक्ट किस पे? लैंग्वेज पे. दूसरी पे वाइस वर्सा, यानी रिवर्स ऑर्डर में, इसको हम इधर से ऐसे देखेंगे. तो ये दोनों चीज़ें हम देखते हैं. मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोशो लिंग्विस्टिक. American linguist, widely regarded as a founder of the discipline of the variationist social linguist. अमेरिकन जो लिंग्विस्ट है विलियम लेबोव जो है, इसका बड़ा नाम है इसमें. He has been described as an enormously original and influential figure who has created much of the methodology of the social linguistic. He is employed as a professor in linguistic department of the University of Pennsylvania and pursues research in सोशियोलिंग्विस्टिक, लैंग्वेज चेंजेस एंड डायलेक्टोलॉजी. डायलेक्ट एक होता है आइडियोलेक्ट. एक और चीज़ आपको समझा दूँ, एक लिखा होगा आइडियोलेक्ट. आइडियोलेक्ट क्या होता है और डायलेक्ट क्या होता है, इन दोनों में भी फर्क है.
आइडियोलेक्ट का मतलब है कि एक ख़ास एक कम्युनिटी है ना। मिसाल के तौर पर आप लाहौर में रहते हैं, आप लाहौर में अगर रहते हैं या किसी गांव में रहते हैं या विलेज में रहते हैं, वहाँ पे एक ख़ास बंदा एक लैंग्वेज को किस तरह इस्तेमाल करता है, क्या वर्ड यूज़ करता है, क्या सिलेक्शन ऑफ वर्ड है, क्या उसका डिक्शन है, क्या उसका स्टाइल है, क्या उसका अंदाज़ है, क्या उसका लहजा है, इंटोनेशन है, सब कुछ जो वो सेपरेटली यूज़ कर रहा है एक लैंग्वेज को बताने में, बात करने में, बैठने में, उठने में, बोलने में, स्पीक करने में, वो उसका आइडियोलेक्ट है। और जो सारे जो लोग हैं, सारों का अलग-अलग से जो बोलने का अंदाज़ है या सिलेक्शन ऑफ वर्ड है, कन्वेइंग मेथड है, बोलना है, स्पीच है, इंटोनेशन है, वो सारा उनका क्या कहलाता है, आइडियोलेक्ट। जब वो सारे मिल जाते हैं आइडियोलेक्ट, तो वो एक डायलेक्ट फॉर्म करते हैं एज अ कम्युनिटी। ये फ़र्क है डायलेक्ट और आइडियोलेक्ट में। आइडियोलेक्ट में हम देखेंगे इंडिविजुअल वे ऑफ कन्वेइंग, टॉकिंग एंड परसीविंग एंड टॉकिंग और इंटरेक्टिंग। लेकिन डायलेक्ट जब सारे लोगों का अलग अलग आइडियोलेक्ट जो है मिलके एक ख़ास जो एक अंदाज बोलने का प्रिपेयर करता है या रिफ्लेक्ट करता है, उसको हम डायलेक्ट कहते हैं उस कम्युनिटी का। होप यू गॉट द पॉइंट। ब्रिटिश सोशलिस्ट, ये तो अमेरिकन सोशल लिंग्विस्ट था, नाम है उसका लबब, यूएस है। ब्रिटिश सोशल लिंग्विस्ट नोन फॉर वर्क इन द सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। Basil Bernstein made a significant contribution to the study of communication with social linguistic theory of language code. Code का मैंने आपको बताया कि code is language basically. Field of study of social linguistic. लैंग्वेज वैरायटी, जब हम सोशल लिंग्विस्ट को स्टडी करते हैं, सोशल लिंग्विस्टिक को स्टडी करते हैं, तो एक सोशल लिंग्विस्ट जो है वो कौन कौन सी चीज़ों को स्टडी करता है, वो सोशल वैरायटीज़ देखता है कि एक वैरायटीज़ कितनी हैं, यानी इसमें पिजन कौन सा है, उसमें क्रोल कौन सा है, और उसमें डायलेक्ट कौन सा है, स्टैंडर्ड वैरायटी क्या है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, और डिग्लोसिया क्या है, वर्नैकुलर क्या है, वो हर चीज़ को देखता है और उन वैरायटी को स्टडी करता है एक सोशल लिंग्विस्ट। अफेक्टिंग क्या करता है, लैंग्वेज वैरायटी, सोशल वेरिएबल्स अफेक्टिंग लैंग्वेज, एथनिसिटी, एथनिक ग्रुप होता है ना। मिसाल के तौर पर हम जो लोग हैं वो डिफरेंट एथनिक ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ पे पठान पाए जाते हैं, ठीक है, पंजाबी पाए जाते हैं, ठीक है, फिर हमें सिंधी पाए जाते हैं, बलोची पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे ख़ास एथनिक ग्रुप हैं, 30 आता है एथनिक ग्रुप। अब ये इनके अंदाज बोलने का और इनके हर बंदा जो भी बोलेगा तो वो फ़ौरन, आप एक पठान आपके सामने बोल रहा हो तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे ये पठान है, चाहे वो बेचारा जितनी भी कोशिश करे, वो आपको एरिया बता देगा अपने बोलने के अंदाज से, मैं भाई KPK से आया हूँ या अफ़गानिस्तान से आया हूँ। एथनिसिटी, रिलीजन, ये सारी स्टडी एक सोशल लिंग्विस्ट करता है। स्टेटस का भी पता चल जाता है, जब आप लैंग्वेज की सिलेक्शन ऑफ वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना ख़ास, तो आपका पता चल जाता है यू बिलोंग टू सच एंड सच स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टॉकिंग टू मी, आई एम यूजिंग अ गुड फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर, hyperbole, a kind of cataphora, anaphora, so like these figure of speech and techniques in a way to convey message, you people will easily understand this person is having such and such qualification, status and profession. आप मेरे प्रोफेशन का भी पता चल जाएगा, स्टेटस का भी पता चल जाएगा, लैंग्वेज से बहुत सारी चीज़ें यहाँ हो जाएंगी आपको। जेंडर, लेवल ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करते हैं, सोशल लिंग्विस्टिक, ये इसकी फील्ड है। एज एंड सो ऑन, रूल क्रिएशंस फॉर सोशल्स आर द सोशो इकोनॉमिक क्लासेस, ये भी पता चल जाता है इसमें। डायलैक्ट्स को हम स्टडी करते हैं। यूजेज ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अब डायलैक्ट का मतलब क्या है, यूजेज ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मिसाल के तौर पर आप लाहौर आए, लाहौर से आप सफ़र करते आए ओकाड़ा, ओकाड़ा से आगे आ जाएँ साहिवाल, साहिवाल से आगे आएँ ज़रा चीचावतनी, यहाँ से फिर आगे मियाँ चन्नू आ जाएँ, आगे अब खानेवाल आ जाएँ, आप मुल्तान आ जाएँ। जैसे जैसे आप ट्रैवल करते जाएंगे डायलैक्ट पंजाबी के चेंज होते जाएंगे। हाउ यू गेटिंग द पॉइंट।
तो ये सारे डायलेक्ट्स एक्सक्यूज मी सर, Yes. अस्सलाम वालेकुम सर। स्लाइड नहीं शो हो रही, लाइट का प्रॉब्लम है? जी बताइएगा दूसरे स्टूडेंट, आप लोगों को भी स्लाइड शो नहीं हो रही? हो रही है सर, हो हो रही है रही है सर। डियर आपका कोई प्रॉब्लम है आपके नेटवर्क? सर। पता नहीं स्लाइड मैंने समझा शायद लाइट का कोई प्रॉब्लम है। नो नो, ऑल स्टूडेंट आर, आई थिंक यू शुड चेंज योर प्लेस और नेटवर्क। आपको कोई नेटवर्क का वॉइस इशू है? क्लियर है। मैं फिर मीटिंग को लीव करके दोबारा ज्वाइन करती हूँ। दोबारा ज्वाइन करेंगे। क्लासेस, डायलेक्ट्स, यूजेज। और डायलेक्ट क्या होता है? बेसिकली यूजेज ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक आपका डायलेक्ट जो है वो चेंज होता जाएगा और आपको पता चलता जाएगा बंदा लाहौर का है, मियाँ चन्नू का है, मियाँ वाली का है, जिस एरिया का है आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। तो ये आपको बता देता है कि इंसान कहाँ से आया। डायलेक्ट आपको बताएगा कहाँ से बंदा आया है, किस एथनिक ग्रुप का है, किस इलाके का है, किस एरिया का, किस जियोग्राफिकल प्लेस का है, सब पता चल जाएगा। ग्रामर, ये भी हमारा सोशल लिंग्विस्टिक के अंदर स्टडी होती है। फोनेटिक्स एंड वोकैबुलरी ऑफ द लैंग्वेज वेरिएशंस अमंग द सोशल क्लासेस। सोशल लेक्ट हम स्टडी करते हैं, कोड स्विचिंग हम स्टडी करते हैं। वी स्टडी ऑल इन सोशल लिंग्विस्टिक। हाँ जी, अब फौजिया आपको शो हो रही है? जी सर, अब मुझे विजिबल है। डोंट वरी, मैं आपको सेंड कर दूंगा, मेरे पास असाइनमेंट है। थैंक यू सर, थैंक यू। स्पीच कम्युनिटी, मेन कंसेप्ट ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक। सोशल लिंग्विस्टिक के मेन कंसेप्ट, आप जब सोशल लिंग्विस्टिक को स्टडी करते हैं आपको पता होना चाहिए स्पीच कम्युनिटी क्या होता है, हाई लो प्रेस्टीज वैरायटी क्या होती है। जैसे मैंने बताया कि डायग्लोसिया के अंदर क्या होता है, एंड इन डायग्लोसिया यू नीड एक ही लैंग्वेज लेकिन उसकी वैरायटी दो। लैंग्वेज एक ही है लेकिन उसकी वैरायटी दो हैं, कि वैरायटी हाई वैरायटी, लो वैरायटी। आप ज़रा पंजाबी को ही ले लीजिए, पंजाबी में भी एक हाई वैरायटी है, एक लो वैरायटी है। इंग्लिश हाई वैरायटी, लो वैरायटी, उर्दू हाई वैरायटी, लो वैरायटी। तो ये डिग्लोसिया कहलाता है। एक ही लैंग्वेज की दो वैरायटीज़ होती हैं। हाई लो प्रेस्टीज वैरायटी, सोशल नेटवर्क, लैंग्वेज एंड ई लैंग्वेज। डिस्क्रीट ग्रुप, डिस्क्रीट का मतलब मैंने बताया था मुख्तलिफ, वेरियस। डिस्क्रीट का मैंने क्या मतलब बताया था आपको? वेरियस। कहता है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल हु यूज लैंग्वेज इन अ यूनिक एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेड वे अमंग देमसेल्फ। वो उसकी स्पीच कम्युनिटी होती है कि हम बहुत सारे ग्रुप हैं लोगों के, लेकिन वो क्या बोलते हैं, एक लैंग्वेज म्यूचुअली अंडरस्टैंडेबल होती है। वहाँ पे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, वहाँ हो सकता है मेरे साथ और भी कुछ इंग्लिश स्पीकर बैठे हों, अरबिक बैठे हों, लेकिन एक लैंग्वेज ऐसी होगी कि वो सारी स्पीच कम्युनिटी ने क्या बनाई हुई है, एक बनाई होगी, वो अंडरस्टैंडेबल होगी। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हमने क्या बना लिया, इंग्लिश लैंग्वेज को हम क्या कह सकते हैं आज का, लिंग्वा फ्रेनिका। व्हाट इज, वो आपसे पूछ लें कि व्हाट इज लिंग्वा फ्रेनिका। लिंग्वा फ्रेनिका, व्हाट इज लिंग्वा फ्रेनिका, हु विल टेल मी? International language which we can, which everybody can understand well. Yeah, we can say that lingua franca is a kind of global language that can be understandable at global level.
Present. Present. हाँ जी, वेलकम। से देखिएगा, लैंग्वेज इन कॉन्टैक्ट, लैंग्वेज इन कॉन्टैक्ट, लैंग्वेज इन कॉन्टैक्ट अकर्स व्हेन टू और मोर लैंग्वेज वैरायटी इंटरेक्ट्स। अब 5-6 लैंग्वेज जो है एकदम एक आमने सामने आ जाएं तो उसे कहते हैं लैंग्वेज इन कॉन्टैक्ट। मैंने आपको बताया कि जब 7-8 स्पीकर जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं और उनको एक स्पेसिफिक बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत है तो वो एक लैंग्वेज फॉर्म करते हैं। मोस्टली वर्कर ऐसा करते हैं, पिजन लैंग्वेज। वो कौन सी लैंग्वेज करते हैं फॉर्म? पिजन, उसको पिजन कहते हैं। लेकिन वही पिजन अगर कंटिन्यूसली किसी एरिया में यूज़ होती रहे और वो वहाँ बच्चों की मदर टंग बन जाए तो वो उसका किरोल बन जाएगा। ये बात याद रखें। लैंग्वेज कॉन्टैक्ट अकर व्हेन टू और मोर लैंग्वेज ऑफ वैरायटी इंटरेक्ट्स। लैंग्वेज कॉन्टैक्ट वो कहता है जी डिफाइन लैंग्वेज इन कॉन्टैक्ट, तो आपने बताना है जब 5-6 लैंग्वेज यानी मोर देन 2-3 लैंग्वेज आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाएं या स्पीकर इकट्ठे हो जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज इन कॉन्टैक्ट। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट लिंग्विस्टिक। कॉन्टैक्ट लिंग्विस्टिक, तो ये एक एरिया होता है उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट लिंग्विस्टिक के अंडर हम फिर स्टडी करते हैं इसको। हम अब जब कॉन्टैक्ट में लैंग्वेज आती है, मिसाल में फ्रेंच स्पीकर, जर्मन स्पीकर, अरबिक स्पीकर, उर्दू, पंजाबी स्पीकर, इंग्लिश स्पीकर सारे इकट्ठे हो गए तो वो एक दूसरे के वर्ड जो है वो क्या करेंगे? बारोड करना शुरू कर देंगे। यानी एक लैंग्वेज का बंदा जो दूसरे के कुछ बारो कर लेगा, फिर दूसरे कैसे वो लैंग्वेज बारोड वर्ड आ जाते हैं। कुछ एक लैंग्वेज जो ज़्यादा डोमिनेट लैंग्वेज होती है वो दूसरों को डोमिनेट कर लेती है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर खुद वर्ड जो आके जज़ब हो जाती है। हर साल उसमें जो है वो इसके अंदर इतनी प्रोडक्टिविटी है कि लैंग्वेज वापस में उसके अंदर आते रहते हैं। The most common way that language influence each other is by exchange of word. अगर लैंग्वेज एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं तो वो एक्सचेंज, जब उसके स्पीकर एक्सचेंज करते हैं आइडियाज़ एक दूसरे के साथ तो फिर वो एक बंदा दूसरे को, जो ज़्यादा डोमिनेट लैंग्वेज होती है वो दूसरे को इन्फ्लुएंस कर लेती है। लोग जो है उसमें फिर बातचीत करना शुरू कर देते हैं और वर्ड जो है उसके अंदर बारोड हो जाती हैं। जैसे गुलोनाइजेशन है, आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोलें तो उसके अंदर आया हुआ है गुलोनाइजेशन। Adoptions of other language feature. The influence can deeper extending होता है बढ़ाना, to the exchange of even the basic characteristic of the language such as morphology and the grammar. Morphology का आपको पता है कि construction of words, grammar आपको पता है tenses और उसके noun, part of speech सारा कुछ उसमें स्टडी करते हैं। Language shift. The result of the contact of the two language can be replacement of one by other. सुपर स्ट्रैटम्स एंड सब स्ट्रैटम। एक होता है सुपर स्ट्रैटम, एक सब स्ट्रैटम। मिसाल के तौर पर 2 लैंग्वेज है। एक लैंग्वेज है जो सुपर है, जो ज़्यादा प्रेस्टीज रखती है, जिसकी ज़्यादा वैल्यू है, L1, और एक उसके साथ दूसरी L3, L4 बहुत सारी है। अब अगर ये ज़्यादा डोमिनेटेड लैंग्वेज है तो ये इसको क्या कर लेगी? इसको डोमिनेट कर लेगी, इसके वर्ड इसके अंदर जज़ब होने शुरू हो जाएंगे। अब लैटिन लैंग्वेज बड़ी वैल्यू रखती थी कभी, लेकिन जैसे ही इंग्लिश आई तो लैटिन के बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो आज इंग्लिश में बदलते हैं। तो एक लैंग्वेज जो है वो दूसरे को क्या कर लेती है? अपने अंदर जज़ब कर लेती है। सो द रिजल्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द 2 लैंग्वेज कैन बी रिप्लेसमेंट। तो उसकी रिप्लेसमेंट का रिजल्ट फिर निकलता है कि एक लैंग्वेज दूसरी को रिप्लेस कर लेती है। और हमेशा जो होती है ज़्यादा प्रेस्टीज रखने वाली, ज़्यादा वैल्यू रखने वाली लैंग्वेज दूसरी जो छोटी लैंग्वेज होती है उसको अपने अंदर ले लेती है। लैंग्वेज शिफ्ट। The result of the contact of the 2 language can be replacement, ये पढ़ लिया। स्ट्रेटल, स्ट्रेटा का मतलब होता है सेक्शन। वैसे स्ट्रेटल इन्फ्लुएंस, when people retain feature of the substratums as they learn the new language and passes these features on to their children, leading to the development of the new variety. मिसाल के तौर पर मैंने कोई लैंग्वेज सीखी, ठीक है, और मैंने जो फीचर्स सीखे मैंने अपने बच्चों को भी वो सिखा दिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ? स्ट्रेटल इन्फ्लुएंस में चला गया हूँ। यानी जो लैंग्वेज मुझ पे इन्फ्लुएंस की थी मैंने अपने बच्चों को भी सिखा दिए वर्ड और उससे रिलेटेड लैंग्वेज, तो वो एक नई वैरायटी फिर उससे निकल आएगी। कहते हैं ना कि उर्दू जो है वो मिक्सचर ऑफ, उसको लश्कर कहा जाता है। लश्कर, उर्दू का मानी है लश्कर, कि बहुत सारी लैंग्वेज मिल के ये बनी है ये। तो इसी तरह बहुत सारी लैंग्वेज जो है वो मिल के एक लैंग्वेज फॉर्म कर देती है बाज़ बात। फिजनाइजेशंस एंड क्रोलाइजेशंस, ये मैंने पहले भी आपको बताया। फिजन क्या होता है?
What is pigeon? I have explained you time and again. According to you, what is pigeon? In simple word, anybody, if wanna tell me, what is pigeon? Pigeonization or mixture of Mixture various languages to communicate. To communicate for specific purpose, for business purpose usually. And it was formed when the trade slaving, or like a slaves, they were brought from the different part of the world, and especially British they were doing like that. They were bringing black people, they were bringing some people from the Vietnams, like these areas, they are bringing some people from the Asian countries, and they are hiring them in their companies. And now there are mixture of languages. अब यहाँ पे मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस जो हैं वो आ गई हैं. अब उनको क्या कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, तो वो क्या करते हैं, वो सारे जो लोग हैं उन्होंने एक अपनी लैंग्वेज, कुछ अरबी, पंजाबी और इंग्लिश और इस तरह जितने भी वो लोग थे उन्होंने एक अपनी लैंग्वेज बना ली, पिजनाइजेशन कर ली. क्योंकि उन बेचारों को सारी लैंग्वेज तो नहीं आती थी, कुछ अफ्रीका से लाए थे, कुछ एशिया से लाए थे. मैं एक चीज़ थोड़ी ऐड करना चाहूँगी. ये कुवैत में भी बंगाली जो है वो भी समटाइम अरबिक मिक्स और इंग्लिश मिक्स, और इसी तरह जो अरबिक है वो इंग्लिश मिक्स और कुछ अरबिक के साथ इस तरह वो आपस में ये कम्युनिकेट करते हैं अपने बंगाली वर्कर्स के साथ. और मिस्त्री बिल्कुल यही चीज़ है. ये मैं पहले मिसाल दे चुका हूँ इन बच्चों को, इनको मैंने यही मिसाल दी है कि फिजनाइजेशन क्या होता है, क्रोलाइजेशन क्या होता है, ये सब कुछ इनको मैंने बताया है. आपने बिल्कुल वही मेरे वाली बात रिपीट की है. इवन सर जब यहाँ पे टीचर्स को लेते हैं ना एलकेजी में, तो वो कहते हैं कि आप लोगों को अरबिक आनी चाहिए ताकि आप जो है बोलनी आपने इंग्लिश है, लेकिन अगर बच्चा बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करता तो आपने उसमें कुछ वर्ड्स अरबिक के डालने हैं, तो वो फिर यही चीज़ बताती है. पीपल विद नो कॉमन लैंग्वेज इंट्रैक्ट्स डेवलपिंग अ पिजन. जब किसी लोगों में कोई कॉमन लैंग्वेज ही ना हो, मिसाल के तौर पर ना उनको पंजाबी आए, ना अरबी आए, ना अफ्रीकन लैंग्वेज आए, ना उनको चाइनीज़ लैंग्वेज आए, तो बहुत सारी लैंग्वेज बिल्कुल अलग वैरायटी के लोग इकट्ठे हो गए. तो वो क्या करते हैं, फिर फिजन क्रिएट कर लेते हैं. दे क्रिएट फिजनाइजेशन एंड फिजनाइजेशन अल्टीमेट सम टाइम लीड्स टू क्रोलाइजेशन. और जो पिजनाइजेशन है वो किसकी तरफ ले जाता है उनको, क्रोलाइजेशन का मतलब है कि वही पिजन जो लैंग्वेज है उन्होंने लर्न कर ली, अपनी लैंग्वेज बना ली, फिर उन्होंने बच्चों को भी सिखा दी, घर वालों को सिखा दी, और उनकी वो मदर बच्चों की टंग बन गई, तो वो क्रोलाइजेशन बन जाएगा उसका. विच मे इवेंचुअली बिकम अ नेटिव लैंग्वेज. जब वो नेटिव बन जाए पिजन, तो वो क्या बन जाता है, फिर क्रोल होता है. यानी डेवलपमेंट किसकी है, पिजन की है, क्रोल. अब अगर ये दोनों आ जाए, फिजनाइजेशन आ जाए या क्रोलाइजेशन आ जाए, तो कर लोगे? ये शॉर्ट क्वेश्चन. Yes, sir. अच्छा, ये चीज़ें जो है मज़ीद हम इसके अंदर स्टडी करते हैं. मतलब ये देखिए, अदर इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज कॉन्सेप्ट जैसे स्लैंग्स होती हैं, तो स्लैंग भी होते हैं कि ये भी ख़ास लैंग्वेज के होते हैं. मिसाल के तो इंग्लिश के अलग से हैं, उर्दू के अलग से हैं, और ये इनफॉर्मल होते हैं. जार्गन्स जो होते हैं ये भी ख़ास वर्ड्स होते हैं, और हो सकता है वो आपको समझ ही ना आए, क्योंकि ये कल्चर से रिलेटेड होते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं, इंसानों के कल्चर, रहने और उनके अंदाज जो होते हैं बैठने उठने के, वो उनसे रिलेटेड उन्होंने अपने कुछ बनाए होते हैं. स्लैंग ये सारे इनफॉर्मल हैं, ये भी इनफॉर्मल है, ये भी इनफॉर्मल है. ईडियम भी इनफॉर्मल होते हैं. और ये डायलैक्ट मैंने आपको बता दिया, ये ख़ास एरिया या किसी ख़ास इलाके को बताता है, वो डायलैक्ट होता है. सेकंड लैंग्वेज का आपको पता है कि एक आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज होती है और एक सेकंड. हमारी सेकंड लैंग्वेज क्या है, हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज कौन सी है? फर्स्ट लैंग्वेज हमारी कौन सी? नो, हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज तो पंजाबी बनेगी, मदर टंग हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज है ना, तो वो हमारी पंजाबी लैंग्वेज है. और जो हमारी सेकंड लैंग्वेज है वो क्या है, वो उर्दू है. और थर्ड लेवल पे हम क्या सीखते हैं, अरबिक सीखते हैं. और फोर्थ लेवल पे जाके हम क्या सीखते हैं, इंग्लिश जाके सीखते हैं. हमसे तो इंग्लिश थ्राइस अवे हो जाती है. मतलब फ़र्स्ट हमने पंजाबी सीखी, फिर हमने उर्दू सीखी, फिर हम मस्जिद में चले गए तो अरबिक सीख ली. अब फोर्थ लेवल पे हमने क्या सीख लिया, आगे इंग्लिश सीख ली. ऐसे ही होता ना हमारे साथ. आम जो यूजुअल है यही मेथड है कि पहले आप पंजाबी सीखते हो, या अगर आप पंजाब में पैदा हुए तो डेफिनेटली पंजाबी तो आपको सिखा ही देते हैं, वो और खुद ही आ जाती है. फिर आप उर्दू सीखते हैं, फिर आप अरबिक सीखते हैं, और फिर आप इंग्लिश सीखते हैं कि फोर्थ लेवल पे जाके.
तो वर्नैकुलर का मैंने बताया वैरायटी, ख़ास कोई वैरायटी इलाके की लैंग्वेज, और सेकंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज जो हमारी जैसे इंग्लिश है हमारी फॉरेन लैंग्वेज है। लिंग्वा फ्रैंका कौन सी लैंग्वेज आजकल बन चुकी है? इंग्लिश। और अगर ख़ास इलाके में मिसाल के तौर पर हमारे कितने प्रोविंस हैं? हमारे कितने प्रोविंस हैं? पंजाब और बलूचिस्तान, और फिर हमारे पास केपी के और हमारे पास सिंध है। अब फौजिया 4 इलाकों में हमारा लिंग्वा फ्रैंका इधर क्या बनेगा? जो इन चारों को यूनाइट करता है वो उर्दू है। यानी ऐसी लैंग्वेज जो कॉमनली अंडरस्टूड हो वो उसका लिंग्वा फ्रैंका होता है। हमारे अब 4 सूबों का लिंग्वा फ्रैंका क्या है? हमारा उर्दू है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो लिंग्वा फ्रैंका क्या बन गया अब? इंग्लिश। तो व्हाट इज़ लिंग्वा फ्रैंका? अगर आपसे पूछ लें कि लिंग्वा फ्रैंका क्या होता है तो आपने बताना है कि लिंग्वा फ्रैंका इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ कॉमनली अंडरस्टूड अमंगस्ट द पीपल। जो उस कंट्री इलाके के लोगों में कॉमनली अंडरस्टूड होता है वो होता है लिंग्वा फ्रैंका। तो इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो अब इंग्लिश बन गया, लेकिन पाकिस्तान लेवल पे देखा जाए तो हमारा उर्दू ही है, क्योंकि उर्दू हमारा लिंग्वा फ्रैंका है कि 4 सूबों को यूनाइट रखता है और चारों के सूबों के लोग उसे समझते हैं। होप यू गॉट द पॉइंट। लिंग्वा फ्रैंका भी हम स्टडी करते हैं, ग्लोबल लैंग्वेज स्टडी करते हैं। ग्लोबल लैंग्वेज आजकल इंग्लिश चल रही है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज और उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी 2 चल रही हैं आजकल, एक तो इंग्लिश भी है और उर्दू भी, दोनों साथ साथ चल रही हैं। कहीं उर्दू भी हम अगर देखा जाए तो कोर्ट के अंदर जो जजेस यूज़ करते हैं वो इंग्लिश यूज़ करते हैं, जो वकील्स लिखते हैं वकील उर्दू में लिख रहे होते हैं। तो इस तरह ये दोनों ही साथ साथ चल रही हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। तो एक स्टैंडर्ड वैरायटी होती है लैंग्वेज की, एक लो वैरायटी होती है, वो मैंने आपको समझा दिया। सो लेट्स सी फर्दर। सोशल लिंग्विस्टिक एंड टीचिंग इम्पोर्टेंस। अब अगर आपने टीचिंग करनी है तो आपको सोशल लिंग्विस्टिक का कंसेप्ट अगर आपके पास है तो दैट विल बी वेरी इजी टू टीच। लैंग्वेज एज अ कन्वेंशनल सिस्टम अक्वायर्ड का मतलब होता है हासिल करना। सिस्टम एक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल इन अ सोशल कॉन्टैक्ट, सोशल फिनोमिना ऑफ द वर्बल इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का मतलब होता है कम्युनिकेशन। इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन, वर्बल बोलना, और फिनोमिना कहता है कि ऐसा सोशल फिनोमिना है जो किसके साथ लैंग्वेज कैसे आता है, एक्वायर्ड कैसे होता है? इंडिविजुअल इन सोशल कॉन्टैक्ट। अगर एक इंडिविजुअल सोशल कॉन्टैक्ट करता है तो वो लैंग्वेज एक्वायर कर लेता है। मिसाल के तौर पर मैं अब यहाँ से जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ यहाँ से स्पेन चला जाता हूँ। अब मुझे स्पेनिश नहीं आती, फुल्ली तो नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है। तो अगर अब मैं स्पेन चला जाऊं तो बहुत सारे लैंग्वेज जो उनकी लैंग्वेज की जो वोकैबलरी है, डिक्शन है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं जो वो यूज़ करते हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें सीख जाऊंगा। तो ये सोसाइटी में एक इंडिविजुअल जब किसी सोसाइटी के अंदर इंट्रैक्शन करता है तो उसे खुद बहुत लैंग्वेज आ जाती है। लैंग्वेज एज अ डिस्टिंक्टिव एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रेजेंटिंग लिंग्विस्टिक वैरायटी विच आर जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, सोशल, कल्चरली डिटरमिन्ड। तो जब आप लैंग्वेज बोलते हैं तो आपको जियोग्राफिकली एरिया का भी पता चल जाता है, हिस्टोरिकल भी पता चल जाता है। मेरे सामने अगर कोई केपी के या अफगानिस्तान का बंदा बोले तो फ़ौरन उनकी हिस्ट्री सब कुछ मेरे सामने आ जाएगी, सोसाइटी भी उसकी पता चल जाएगी, कल्चर भी उसका पता चल जाएगा, सब कुछ डिटरमिन हो जाएगा जब वो बोलेगा। Relevant in the process of the teaching foreign language as a social adjustment factor. Language variation according to gender, age, ethnicity, status, and so on. Notion of the word English is on the basis of the language regional variations. अब डेविड क्रिस्टल ने इसके ऊपर बड़ा वर्क किया है। इंग्लिशिज वो कहता है कि हर कंट्री जो है वो अपनी एक डिफरेंट वैरायटी रखता है इंग्लिश की। उसने कहा कि इंडियन वैरायटी, ठीक है, उसने कंसेप्ट दिया इंडोनेशियन वैरायटी, ठीक है, और उसने कहा अमेरिकन वर्नैकुलर इंग्लिश एक है, अमेरिकन जो ब्लैक अमेरिकन वर्नैकुलर इंग्लिश है, उनका भी एक स्टाइल है बोलने का। अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको उनकी पता ही नहीं चलेंगी, बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो छोड़ देते हैं, आपको बोले वो सीखना पड़ेगा उनका।
एक अमेरिकन वैरायटी है, फिर स्टैंडर्ड अमेरिकन वैरायटी, फिर इंग्लिश का एक स्टैंडर्ड वैरायटी है इंग्लिश, तो अब कैनेडियन वैरायटी है, ऑस्ट्रेलियन वैरायटी है इंग्लिश की। तो ये उसने कहा इंग्लिशेस, उसने कहा हर लैंग्वेज जो है, तकरीबन हर कंट्री जो है वो अपनी अपनी इंग्लिशेस अपनी बनाए हुए है। वो हमारे यहाँ पे वेलकम नहीं है अमेरिका में, उनके यहाँ वो वर्ड जो है वो वेलकम है। मिसाल के तौर पर इंग्लिश में उन्होंने मिसाल दी कि बहुत सारे वर्ड्स जो हैं इंग्लिश में जो हम अमेरिकन नहीं बोलते लेकिन वो बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज रीजनल वेरिएशन, मेन एम्फसिस ऑन द कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजिबिलिटी रादर दैट परफेक्ट नेटिव लाइक प्रोनाउंसिएशंस। यानी मेन कहता है एम्फसिस ये होता है कि इंटेलिजिबल है, पीपल आर having intelligibility whatever they are talking. For example, Indian people, they talking to each other in English, they understand. They might not be understandable by the native speaker. अब नेटिव स्पीकर उसे समझे ना समझे लेकिन वो आपस में तो उनकी इंटेलिजिबिलिटी बनी हुई है, वो कम्युनिकेशन करते हैं। तो कहता है जी एज लॉन्ग एज ये इंटेलिजिबल हो लैंग्वेज का मेन मकसद ये होता है कि कम्युनिकेट करना। अगर वो कम्युनिकेट कर रहा है अपना पर्पस एक एंड से दूसरे एंड तक, तो वो लैंग्वेज ठीक है उनकी, वो उनकी एक ख़ास वैरायटी होगी। सोशल लिंग्विस्ट, ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक विच डील विद द स्टडी ऑफ लैंग्वेज यूज इन सोसाइटी and socio-cultural context. In addition, it is a study of the linguistic indicators of the culture and power of शेमिस्ट ने कहा 2011। सोशल लिंग्विस्टिक के अंदर क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, स्टडी ऑफ लैंग्वेज चेंज के क्या क्या लैंग्वेज के अंदर चेंज आई है, स्टडी लैंग्वेज वेरिएशन के, लैंग्वेज का वेरिएशन, डायलेक्ट क्या है, एक्सेंट क्या है, ठीक है, डिग्लोसिया क्या है, रजिस्टर क्या है, सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं। एक्सप्लेन वाई लैंग्वेज चेंज, वो लैंग्वेज के चेंज होने का क्या 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 वजह है कि वो लैंग्वेज चेंज होगी, ये सारी स्टडी आप सोशल लिंग्विस्टिक में करते हैं। इट डिस्क्राइब लैंग्वेज वैरायटी बिटवीन द डिफरेंट एथनिक, रिलीजियस स्टेटस, जेंडर ग्रुप्स, एक्सप्लेन हाउ एजुकेशनल लेवल, एज एटसेट्रा may influence the language difference and categorization individual in the social and socio-economic class. Social linguistics is a study of whole language and social factor are related. कि social factor और language किस तरह related है, ये हम social linguistics में study करते हैं। Variety of language, a set of linguistic item with similar distribution, हडसन की ये definition है। Language variation, standard and non-standard language. Standard language refer to the mode of usage of the most educated speaker of the language and established as a prestigious form of that language. अब हर लैंग्वेज जो होती है ना उसकी एक प्रेस्टिजियस वैरायटी होती है, बड़ी स्टैंडर्डेबल वैरायटी होगी, कुछ लोअर उसकी वैरायटी भी होगी। पंजाबी को ही देख लें, एक उसकी स्टैंडर्डेबल वैरायटी है, एक और बहुत सारे इतने डायलैक्ट हैं कि आप सुनते जाएंगे परेशान होते जाएंगे और वर्ड चेंज होते जाएंगे। अब मॉर्निंग है तो मॉर्निंग को सुबह कोई कई नाम दिए हुए हैं वैरायटीज़ के अंदर। तो इस तरह ये एक स्टैंडर्डेबल वैरायटी होती है जो पढ़े लिखे लैंग्वेज यूज, सोफिस्टिकेटेड और बड़े रिफाइंड सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और इंग्लिश में भी ऐसे ही है, हम चूँकि वो वैरायटीज़ को जानते नहीं हैं इसलिए हम कहते हैं यार इंग्लिश तो बड़ी रिफाइंड और बड़ी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है, जबकि इसके अंदर कितनी वैरायटीज़ हैं और वो इतने सेंटेंस ही, वो पूरा सेंटेंस ही खा जाते हैं। मिसाल के तौर पर अब किसी अनपढ़ अंग्रेज से बात करें तो वो कहेगा well market what buying some vegetable, married yes married, बस। अब उसने एक सेंटेंस नहीं बोला और उन्होंने अपना मकसद बता लिया। मैं कह रहा हूँ कि कोई अनपढ़ अंग्रेज अगर बोल रहा हो, वो ना पढ़ा लिखा हो, तो वो एक सेंटेंस वो कहेगा मार्केट what buying vegetables, married yes married, तो वो अपनी बात समझा लेंगे एक दूसरे। अब देखें एक सेंटेंस भी पूरा नहीं बोला। तो ये है असल में, ये सारी वैरायटीज़ हैं। लैंग्वेज वेरिएशंस, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड। अब अगर आप BBC को सुने, CNN को सुने, ठीक है, वो जो उनके स्टैंडर्ड स्कूल हैं ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज या इस तरह के, तो उनमें जो लैंग्वेज की वैरायटी बोली जाती है वो स्टैंडर्डेबल वैरायटी है।
वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड एक्सेंट है उनका। स्टैंडर्ड लैंग्वेज रेफर टू द मोड ऑफ यूजेज ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड स्पीकर ऑफ लैंग्वेज एस्टैब्लिश्ड एज द प्रेस्टिजियस फॉर्म ऑफ दैट लैंग्वेज। दिस टर्म इज आल्सो यूज्ड फॉर दैट वैरायटी ऑफ अ लैंग्वेज विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द नॉर्म्स। अब वो जो उसका एक नॉर्म होगा कि इस अंदाज से अगर आपने स्टैंडर्डेबल बोलना है तो ऐसे बोलना है। डायलेक्ट और एक्सेंट, डायलेक्ट का मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक्सेंट का भी अंदाज होता है, ठीक है। हर एक्सेंट है, मिसाल के तौर पर एक मेरा एक्सेंट है, मैं जो आपके साथ बोल रहा हूँ, एक फौजिया बोलती है, एक नीला बोलती है, एक कोई और बोल रहा है, किसी और कोई इंग्लैंड में गया हुआ तो वो बोल रहा है, एक अमेरिका में, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक कनाडा में, एक इंडिया में, एक इंडोनेशिया में, एक किसी और कंट्री के अंदर, ठीक है। अब जितने कंट्रीज़ के अंदर आप रह रहे हैं उस अंदाज से जो आप बोल रहे हैं एक्सेंट को, वो आपका एक्सेंट है। एक स्टैंडर्ड एक्सेंट है जो ब्रिटिश के जो सर्टिफाइड स्कूल्स जो हैं उसके अंदर जो वैरायटी बोली जाती है वो उसका स्टैंडर्ड एक्सेंट होगा। स्टैंडर्ड एक्सेंट कौन सा है? जो बीबीसी बोलता है, जो आपका कैम्ब्रिज के अंदर कोई पढ़ा लिखा बोलता है, ठीक है, जो कोई ऑक्सफोर्ड के अंदर बोल रहा है वहाँ के रूल के मुताबिक। डायलेक्ट कैन बी डिफाइंड एंड द स्टैंडर्ड लैंग्वेज a prestige dialect and in the business education and media dialect can be described as a different level according to variation, phonological difference in pronunciations, morphological word structure आता है उसमें, syntactic can be represented different word order। syntactic किसको represent करता है कि आपने sentence को कैसे उसका subject verb और object इसको कैसे फॉर्म किया है, ये उसका सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर है। मॉर्फोलॉजी वर्ड से रिलेटेड, मॉर्फीम और उसके बाद इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल और किस तरह आपने सफिक्स और प्रीफिक्स और ये काम किए, उसको मॉर्फोलॉजिकल वर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। सिमेंटिक डिफरेंस इन मीनिंग्स, हम मानी को फिर देखते हैं, कॉन्टेक्चुअल, डिनोटेशनल, कोनोटेशनल, सिचुएशनल, कॉन्टेक्चुअल, प्रैग्मेटिक लेवल पे, तो ये सारे सिमेंटिक में आते हैं। ग्रामेटिकल डिफरेंस इन द ग्रामर स्ट्रक्चर में डिपेंड ऑन द सोशल स्टेटस ऑफ द स्पीकर, एज एंड जेंडर। Accent, it is a pattern or manner of pronunciations. An accent may identify the locality in which its speaker reside. Geographical and regional accent. Accent क्या है कि आप कहाँ रहते हो, किस इलाके में रहते हो, वो आपका ख़ास एक्सेंट बन जाता है। मिसाल आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया का एक्सेंट आपका होगा, पाकिस्तान में रहते हो पाकिस्तानी एक्सेंट होगा, पाकिस्तानी बोल रहा हो, इंग्लिश कहीं भी बोल रहा हो तो हम कह देते हैं ये पाकिस्तानी एक्सेंट। एक इंग्लैंड से भले वो यहाँ से गया हो, वहाँ पे आप देखिएगा उसका बोलने का अंदाज, वो कैसी इंग्लिश बोलता है, वो उसका एक्सेंट होगा ब्रिटिश। It can indicate the socio-economic status of its speaker and their ethnicity or the social class. Accent can also allow determine the speaker's native language. ये accent से आपको पता चल जाता है ये नेटिव स्पीकर है, नॉन नेटिव है, ये कैसा है, ये वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, ये कौन है, ये भी पता चल जाता है। Accent typically differ in quality of voice, pronunciations of vowels and consonant and stress. अब देखें accent, अब हम लोग हैं consonant vowel को वैसे नहीं बोलते जैसे बोलना चाहिए, ठीक है, वो बिल्कुल कैसे अदा कर रहे होते हैं वर्ड्स को, इंटोनेशन, पिच और उनका स्ट्रेस और कॉन्सोनेंट और वावल पे कैसे बोलना है और कितना जोर देना है, स्ट्रेस पैटर्न को भी फॉलो कर रहे होते हैं। डायलेक्ट इट रेफर्स टू द ब्रॉडर सेट ऑफ लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, इट रेफर्स टू द डिफरेंसेस इन प्रोनाउंसिएशन। एक्सेंट किससे रिलेटेड होता है? एक्सेंट रिलेटेड होता है प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड, ठीक है। इट रेफर्स टू द ब्रॉडर सेट ऑफ लिंग्विस्टिक डिफरेंस, ये लिंग्विस्टिक डिफरेंस है और ये प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड। जार्गन इज यूज विद दीज पर्पस। जार्गन जो होते हैं एक तो होते हैं इनफॉर्मल, ये फॉर्मल नहीं होते। प्रोवाइड स्पीकर ऑफ द स्पेशलाइज्ड डोमेन्स विद अ क्लियर वेल डिफाइंड unambiguous term to refer to their activity. Provide speaker of the subgroup with the mean of making in-group membership and exclude outsides. Slang and jargons are not the same. Slang, it refers to use informal words and expressions that are not considered standard in the speaker or dialect or language. अब slang जो होते हैं ये क्या होते हैं? They are just like informal.
They are not part of the standard English. They are used by the different socio-political cultural values. It may refer to the thing considered taboos or euphemisms. यूफिमिज्म का मतलब होता है कि राउंड अबाउट करके लैंग्वेज बोलना. मिसाल के तौर पर मैं किसी को डाइड, अकबर हैज़ डाइड, अली हैज़ डाइड. अब डाइड का वर्ड जो बड़ा हार्ड सा वर्ड है, अगर मैं उसकी जगह पे कोई और वर्ड यूज़ करूँ, पास्ड अवे, ठीक है. पास औक़ात हम यूफिज्म जो है वो इंग्लिश का भी यूज़ कर रहे होते हैं. बहुत सारे जो वर्ड हैं उर्दू और पंजाबी के, वो बड़े हमारे लिए टैबू हैं. इट्स अ काइंड ऑफ टैबू. टैबू का मतलब होता है एक रुकावट है, हम बोल ही नहीं सकते, फॉरबिडन होते हैं. मतलब पंजाबी में बहुत सारे वर्ड करें तो हम बोलें तो वो अच्छे नहीं लगते, लेकिन बट वी यूज़ यूफिज्म, स्पेशली यूजिंग इंग्लिश, राउंड अबाउट करके इस्तेमाल कर लेते हैं. तो इसको उसका यूफिज्म कहते हैं. सब्सटीट्यूशनल मीनिंग को यूज़ कर लेना. इनऑफेंसिव टर्म सच एज पास्ट अवे को पास्ट अवे फॉर डाइड. हम पास्ट अवे के लिए क्या कर लेते हैं, पास्ट अवे के लिए फॉर डाइड, डाइड के लिए पास्ट अवे यूज़ कर लिया, एक्सपायर हाँ एक्सपायर कर दिया. और इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम मोस्टली, मैं सिंपली कह रहा हूँ कि इंग्लिश में भी हम यूज़ कर लें, उसको भी यूफिज्म कहते हैं. कि हम फॉर एग्जांपल हम ये कह दें कि सम पीपल दे आर डूइंग some bad work, so we will say that we'll use bad work, we'll use bodily functions. So these are the words which are prohibited, but being a trainer teacher I sometimes use euphemisms. और इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं. अगर मैं जैसे हमारे पास जोनाथन स्विफ्ट है, अगर मैं उसको पढ़ाऊँ तो जो कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है तो दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू टीच. तो मैं भी उसमें यूफिमिज्म यूज़ कर लेता हूँ, राउंड अबाउट लैंग्वेज. Jargons or slangs refer to the technical vocabulary of the particular profession, group, trade, a variety of language used by the restricted part of population, usually young people, teenager or less respectable group, or unintelligible writing or talk. Specific dialect resulting from a mixture of several languages. Language variations. To change from one manners of speaking to another according to the circumstances in order to give appropriate impressions, we adapt our speech depending on who we are talking to and nature of the contact. अब देखें हम लैंग्वेज वैरायटी को भी फिर कैसे चेंज कर लेते हैं. कोड स्विचिंग का मतलब क्या होता है कि कोड स्विचिंग मीन कि वी चेंज लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड सिचुएशंस एंड द प्लेस वी आर स्टैंडिंग. अगर मुझे पता है कि मेरे सामने पंजाबी स्पीकर है तो पंजाबी में बोलूँगा, मेरे सामने लर्नर है तो मैं उर्दू में बोलूँगा, मेरे सामने कोई हाई यानी स्टैंडर्डेबल पीपल बैठे हुए हैं तो आई ट्राई टू यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज सो दैट दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो हम लिसनर, सिचुएशन, प्लेस के अकॉर्डिंग भी चेंज कर लेते हैं कोड स्विचिंग. डिलिबरेट चेंज फ्रॉम मैनर और स्टाइल ऑफ स्पीकिंग टू अनदर इज कॉल्ड कोड स्विचिंग और कोड चॉइस. What is language? A mean of communication, information's significance of establishing, maintaining relationship with other people. Language का मकसद क्या होता है? Language क्या करता है? Significant establishing, maintaining relationship with other people. Represent a man's identity in a society, his personality, class, nature, job, सब कुछ आपकी लैंग्वेज बताती है. तो ये लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि only means to convey information. जैसे मैंने कहा कि वो कहते हैं कि अगर मेथड अगर कन्वे हो रहा है मैसेज, अगर मैसेज कन्वे हो रहा है तो वो आप कहें कि वो भी उनकी इंग्लिश है. तो उनको नाम उन्होंने क्या दे दिया, इंग्लिशेस का. हर कंट्री की अलग इंग्लिश है. हाँ जी. रोल प्लेड बाय द लैंग्वेज कन्वेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीकर, एक्सेंट, स्पीच, आइडेंटिटी. Social linguistics, study of the language in relation to the society, or Delheims call it the socially constituted language, a blend of the sociology and linguistic. It also refers to the sociology of the language, scope of utility of social linguistic. While language is a principally used communicate meaning, it is also used to establish, maintain social relationship. अच्छा, लैंग्वेज जो है वो सोशल रिलेशनशिप को भी मेंटेन करती है. मिसाल के तौर पर मेरी आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग है तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ भाई मेरी बात सुन,
I want to convey one message to you. This and that happened, and that is why something happened. I can even explain each and everything to you and clear everything unto you, and then you people can decide what is right and what is wrong. आप लोग फिर खुद डिसाइड कर सकते हैं. लैंग्वेज रिलेशनशिप को बिल्ड करता है. अबाउट द पर्सनैलिटी, क्लास, नेचर, जॉब, पोजीशन इन अ सोसाइटी, ये भी करता है ये. अच्छा जी. Speech community and language diversity. Speech community is defined a group of people who form a community and share the same language, a particular variety of language. अब स्पीच कम्युनिटी पे आ जाए कि नोट लिखें. स्पीच कम्युनिटी अ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो मिल के कम्युनिटी फॉर्म करते हैं और ख़ास लैंग्वेज वो बोलते हैं या डेवलप कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं. आगे जी हमारे पास क्या है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीच कम्युनिटी, दे स्पीक सेम लैंग्वेज या डायलैक्ट. यानी ये ख़ास कम्युनिटी का, जैसे मैं जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारे लैंग्वेज जो है वो बड़ी हार्ड लैंग्वेज बोली जाती है. ठीक है, हमारे लैंग्वेज बड़ी हार्ड किस्म की, यानी पंजाबी एक तो बोली जाती है और वो बड़ी हार्ड लैंग्वेज होती है. यू इवन कांट बियर कि उसमें वो किस तरह के वर्ड्स बोलते हैं. अब मैं वो वर्ड आपके साथ यूज़ करूँ तो आप वैसे ही कहें कि ये सर कैसा बोल रहे हैं डायलैक्ट. तो दिस इज़ माई कम्युनिटी, दिस बिलोंग टू माई कम्युनिटी. This is what my community has given me. I don't want to take it, but they have given me. उन लोगों जहाँ से हम ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने हमें दे दी है वो. The member of the group must interact linguistically with other members of the community. They must share attitude toward linguistic norms. Language variety. Speech variety, language variety refer to the distinguishable form of speech used for speaker or the other group. The distinctive characteristic of the speech variety are mainly reflected in its pronunciation, syntax, vocabulary. Speech variety is a neutral term which is often used to replace such terms standard language, dialect, pidgin, scrolls. अब आप किसी मैं जब भी डिस्कस करूँगा dialect, pidgin, scrolls, रजिस्टर, आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि ये सर क्या बात कर रहे हैं, और ये आने भी हैं एग्ज़ाम में, याद रखें, इनको याद भी रखना है. अच्छा, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, स्टैंडर्ड, डायलैक्ट, रजिस्टर, क्रोल्स, लैंग्वेज, जेंडर्स, लैंग्वेज और फैक्टर्स, फील्ड, मोड ऑफ टैनर्स और डिस्कोर्स, एथनिक, आइडोलिक्ट. आइडोलिक्ट का मैंने बताया आपको कि आइडोलिक्ट क्या होता है, सोशलिक्ट क्या होता है, रीजनल डायलैक्ट क्या होता है. सोशलिक्ट का मतलब होता है कि जो किसी सोसाइटी में बोला जाता है. एक सोसाइटी में जो एक ख़ास अंदाज़ जो है वो बोला जाता है. मिसाल के तौर पर अगर आप मुस्लिम सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपका एक अंदाज़ होगा. अगर क्रिश्चियन सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो उसका एक, इंग्लिश पीपल से तो उनका अपना, एक हिंदू कम्युनिटी सोसाइटी से तो उनका, तो उसका सोशलिक्ट होता है. आइडोलिक्ट मैंने बताया कि एक कम्युनिटी के हर फर्द का जो अंदाज़ है बोलने का वो उसका आइडोलिक्ट है, और सारे आइडोलिक्ट मिलके पूरी कम्युनिटी के एक डायलैक्ट बनाते हैं. एनी कन्फ्यूजन इनके अंदर? क्लियर. अच्छा जी. स्टैंडर्ड लैंग्वेज और स्टैंडर्ड वैरायटी इज़ अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज विच हैज़ हाईएस्ट स्टेटस इन अ कम्युनिटी और nation and which is usually based on the speech and writing of educated native speaker of language. A standard language is generally used in government document and news media and literature, described in dictionaries, grammars and taught in school. स्टैंडर्ड वैरायटी क्या होती है? जो आपके स्कूलों में पढ़ाई जाती है, जो डिक्शनरी में मिलती है, जो ग्रामर के अंदर मिलती है, जो मीडिया के अंदर मिलती है आपके, वो स्टैंडर्ड वैरायटी होती है. Dialect, a variety of language used recognizably in a specific region, specific social class is called dialect. The study of dialect is called dialectology. अगर वो पूछ लें जी डिफाइंड डायलैक्टोलॉजी, फिजनाइजेशन एंड क्रोलाइजेशन, तो आप परेशान हो जाएंगे, सर ने तो हमें डायलैक्टोलॉजी बताया ही नहीं है. डायलैक्टोलॉजी डायलैक्ट की ही स्टडी है. A study of dialect is called dialectology. Dialect can be categorized into the following type. ये डायलैक्ट हैं. एक रीजनल डायलैक्ट होता है, एक सोशल डायलैक्ट होता है, ठीक है, एक आइडोलिक्ट होता है, और एथनिक डायलैक्ट होता है. ख़ास एथनिक होता है ग्रुप. पंजाबी लहदा होगा, पठान लहदा होगा, बलोची लहदा होगा, एथनिक ग्रुप.
रीजनल डायलैक्ट, a regional dialect is a linguistic variety used by the people living in the same geographical region. ये उसका रीजन है. हम किस रीजन से, हम पंजाब से हैं तो ये पंजाबी हमारी क्या होगा, हमारा जो बोलने का अंदाज क्या है वो रीजनल है ना. एक हम रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा रीजन है. एक वो जो दूसरे हैं उनका है, एक पठान जो है पंजाबी हैं. फिर उसको मज़ीद आप डिवाइड कर लें कि आप किस इलाके के किस साइड पे हैं, वो आपके रीजन है. सोशल डायलैक्ट, सोशोलेक्ट भी इसको कहते हैं. सोशोलेक्ट आर सोशल क्लास डायलैक्ट रेफर टू द लिंग्विस्टिक वैरायटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्टिकुलर क्लास. किस क्लास के हैं भाई आप, सोसाइटी में किस में है, अपर में है, लोअर में है, मिडल में है, लोअर मिडल में है, कहाँ रहते हैं, और उसकी आपकी सिलेक्शन और वर्ड भी वैसे ही हो जाएंगे. आइडोलिक्ट इज अ पर्सनल डायलैक्ट ऑफ द इंडिविजुअल स्पीकर. मैंने पहले भी बताया कि आइडोलिक्ट क्या होता है कि पर्सनल डायलैक्ट भी होता है बंदे का, of individual speaker that combine element regarding the regional social genders and the variations. In other words, an individual speaker's regional and social backgrounds, his her genders and age jointly determines the way she talks. Ethnic group मैंने पहले ही आपको समझा दिया, फिर पढ़ देता हूँ, ये देख लें. An ethnic dialect is a social dialect of the language spoken by the less privileged population that has experienced some form of the social isolations as racial discriminations and segregation. जैसे वो अमेरिकन ब्लैक अमेरिकन है, ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन जो है वो उनका क्या है, वो उनका एक एथनिक डायलैक्ट, उनका अपना इंग्लिश का उन्होंने बनाया हुआ, तो उनको बेचारों को सेपरेट रखा हुआ है, तो उन्होंने एक अपना ही फिर फॉर्म कर लिया. इंग्लिश अगर आप उनकी देखें, रिसर्च करें तो उनकी साउथ अमेरिकन वर्नैकुलर इंग्लिश जो है वो किस तरह की है, अफ्रीकन अमेरिकन वर्नैकुलर इंग्लिश. रजिस्टर refers to the type of the language which is the sections are appropriate to the type of the situation. Language used in a different occasions differ in their degrees and formally which is determined by the social variables. A language and the dialect differ from one another every level. So registers can differ in vocabulary, phonology, grammars and semantic. आपने सिंपली लिखना है कि ये लैंग्वेज का यूज़ है रजिस्टर, और ये हर इट इज़ अ फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, इट अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज दैट टेल्स अ फंक्शन ऑफ लैंग्वेज. फंक्शन के इसका वर्क क्या है, मतलब वो रजिस्टर वो किसके, लॉयर के लिए इस्तेमाल हो रही है, डॉक्टर के लिए, मेडिसिन की फील्ड में इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, बिज़नेस की फील्ड में इस्तेमाल हो रही है, या लॉ की बिज़नेस फील्ड में इस्तेमाल, यानी जिस फील्ड की में वो इस्तेमाल हो रही है, वेरियस फील्ड में वो उसका रजिस्टर है. एक मेडिकल का अलहदा, एक लॉयर का अलहदा, एक बिजनेसमैन का अलहदा से, एक डॉक्टर का अलहदा से. दीज आर द रजिस्टर्स. तो ये आगे रजिस्टर भी और भी हैं. लैंग्वेज जेंडर्स, लैंग्वेज एंड एज, ये क्रॉल आ गया, ये देख लें, ये भी हमने पहले भी. पिजन इज़ अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ अ नेटिव लैंग्वेज ऑफ एनीवन बट इज़ नॉट अ नेटिव, यानी ये नेटिव लैंग्वेज नहीं होती, बट इट इज़ लर्न कॉन्टैक्ट विद द सिचुएशन सच एज ट्रेडिंग, यानी ट्रेड के लिए, जैसे मैंने बताया आपको. द प्रोसेस विच द पिजन डेवलप इज कॉल्ड पिजनाइजेशन. Pidgin is usually based on the one language, though it soon takes a substance of other language. When Pidgin develop beyond the role as trade language and become a first language of the social community, it becomes a Creoles. वही चीज़ जो मैंने आपको बताई. लें जी. I hope in today's lecture you people have learned about